Students, today we are going to start our next chapter of English coursebook, that is chapter number 9, The Stone Cutter. Stone means patthar, cutter means उसे काटने वाला. Okay, this is the title of this lesson, The Stone Cutter. Now look at warm-up box. You can see 4 pictures in the box. The people in these pictures seem contented. Contented means satisfied and happy. Can you guess why? इस पिक्चर में आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं, they seems contented, satisfied. They are looking satisfied. Are you happy with your home? क्या आप अपने घर में happy हैं? Your parents, your friends, discuss with your partner and state one reason why you are happy. आप अपने घर में हैप्पी हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पी हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैप्पी हैं, आप अपने पार्टनर के साथ. बट नाउ you are at home, so you have to discuss with your family member that why you are happy. Okay. Yes, dear students, before going to read chapter, let's discuss few word meanings. First word is, you can see in the green box, dwelt. Dwelt means lived. Second is fancy. Here fancy means imagination, kalpana. Stately means magnificent, means shandar, alishan. Next, envied. Envied means longed to possess something. किसी चीज को पाने की इच्छा. Coveted, strongly desired. किसी चीज के लिए आपने बहुत ज्यादा इच्छा की हो. Discontent means dissatisfaction. Contented means satisfaction, or discontent means dissatisfaction. 3 more words are given. Wrath, wrath means anger. Toiled means work hard. Scanty means very little or inadequate, insufficient. Okay. Yes, dear students. This is a very interesting story of a stone cutter. Now I am going to start. Listen very carefully. Once upon a time, there lived a stone cutter. एक बार एक stone cutter था. Every day he went to a great rock in the side of a big mountain and cut out slabs. Slabs means pieces. Cut out slabs for gravestones or for houses. Gravestone, grave बोलते हैं कब्र को. ठीक है, जैसे दफना दिया जाता है ना, उसके ऊपर वो पत्थर रख दिया जाता है. तो या तो वो ग्रेव के लिए पत्थर काटा करता था या फिर हाउसेस में, क्योंकि घर बनाते हैं तो उसमें भी बहुत जगह पत्थर यूज होता है. एवरी डे ही वेंट टू अ ग्रेट रॉक. रोज वो एक बहुत बड़ी रॉक के पास जाता था, माउंटेन के पास जाता था. वहां पर स्लैब्स ऑफ ग्रेवस्टोन, पत्थर के पीस काटता था. He understood very well the kinds of stones needed for different purposes. He understood, वो समझता था बहुत अच्छे से कि किस तरह का पत्थर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है. डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, मीन्स घर में किस तरह का पत्थर यूज करना है अगर घर बनाना है तो, और ग्रेव के लिए किस तरह का होता है. He was very well aware of all these kinds of stones. And as he was a careful workman, he had plenty of customers. वो एक केयरफुल, बहुत अच्छा वर्कमैन था. वो काम में अपने बहुत स्किल्ड पर्सन था वो, तो उसे उसके पास कस्टमर भी बहुत ज्यादा था. वो काम को बहुत अच्छे से करता था. That's why he had plenty. Plenty means number of customers he had. For a long time he was happy and contented. बहुत लंबे टाइम तक वो बिल्कुल खुश था, satisfied था. And asked for nothing better than what he had. और उसके पास जितना था वो उसी में satisfied था. उसने कभी भगवान से या
मतलब उसके मन में कभी किसी और चीज के लिए लालच नहीं आई, भगवान से उसने कभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगा. He was satisfied what he had. Now in mountain dwelt a spirit which appeared to men every now and then. माउंटेन में एक पहाड़ों में एक स्पिरिट रहती थी, आत्मा रहती थी. Dwelt means रहना. Which appeared to men, जो कुछ लोगों को नजर आती थी. Every now and then, कभी कभार उन्हें नजर आ जाती थी. And helped them in many ways to become rich and prosperous. और उनकी हेल्प करती थी बहुत तरह से, उन्हें रिच बनाने में, उन्हें समृद्ध बनाने में. The stone cutter, however, had never seen this spirit. स्टोन कटर ने, लेकिन स्टोन कटर ने उस स्पिरिट को कभी नहीं देखा था, जो स्पिरिट हमेशा लोगों की विशेष पूरी करती थी. इस स्टोन कटर ने उस स्पिरिट को, उस आत्मा को कभी नहीं देखा था. And only shook his head with an unbelieving air when anyone spoke of it. जब कोई उसके बारे में स्टोन कटर से बात करता था तो वो अपना सिर हिला देता था कि उसने उसे कभी नहीं देखा और वो इस बात में विश्वास नहीं करता. But a time would come when he would change his opinion. फिर एक टाइम आ गया, लोगों ने भी उससे कहा कि अब एक टाइम आएगा जब तुम अपना ओपिनियन, अपने ये विचार चेंज कर दोगे. मतलब वो क्या उसे कन्विंस करना चाह रहे थे कि सच में एक स्पिरिट है. One day the stone cutter carried a gravestone to the house of a rich man. एक बार वो जो स्टोन कटर है वो एक ग्रेवस्टोन लेके गया एक रिच मैन के घर में. बहुत अमीर आदमी था, उसके घर में वो ग्रेवस्टोन लेकर गया. एंड सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इन द हाउस. और उसने घर में बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखी. ऑफ विच ही हैड नेवर ड्रीम्ड. ऐसी ऐसी चीजें जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उसे कभी सपने में भी नजर नहीं आई थी. Suddenly his daily work seemed to grow harder and heavier. अब धीरे धीरे जब उसने वो सारी चीजें देखी ना, तो उसके बाद उसे धीरे धीरे अपना जो काम है वो बहुत हैवी, मतलब बहुत हार्ड लगने लगा था. And he said to himself, और उसने अपने आप से क्या कहा? Oh, if only I were a rich man and could sleep in a bed with silken curtains and golden tassels, how happy I should be. Tassels होते हैं लटकन. Okay. Oh, if only I were a rich man. अगर मैं एक rich man होता, अगर मैं एक अमीर आदमी होता, and could sleep in a bed with silken curtain. एक अच्छे से बेड पर होता, वहां पर आसपास सिल्क के कर्टेन्स लगे हुए होते और उनपे गोल्डन लटकन लगे हुए होते. हाउ हैप्पी आई शुड बी. मैं कितना खुश होता, अगर ये सब मेरे पास होता तो मैं कितना खुश होता. एंड अ वॉइस आंसर्ड हिम. तभी एक आवाज आई, योर विश इज हर्ड, अ रिच मैन यू शैल बी. तभी अचानक से क्या आवाज आई कि तुम्हारी विश सुन ली गई है और तुम अब एक रिच मैन, अमीर आदमी बन जाओगे. At the sound of the voice, the stone cutter looked around. जब उसने वो आवाज सुनी कि तुम्हारी विश सुन ली गई है, तो स्टोन कटर ने अपने चारों तरफ देखा. But could see nobody. पर उसे कोई भी नजर नहीं आया. He thought it was all his fancy. Fancy means imagination, कल्पना. उसने क्या सोचा कि ये सब क्या था? उसकी इमेजिनेशन थी. वो अपनी मतलब ऐसी सोच रहा था, ये सब सच नहीं है. And picked up his tools and went home. उसने अपने टूल्स, अपने औजार उठाए और घर चला गया. For he did not feel inclined to work anymore that day. उस दिन उसका कोई भी काम करने, inclined means इच्छा, इच्छुक होना. उसके बाद उसका उस दिन कोई भी काम करने का मन नहीं किया. But when he reached the little house where he lived, पर जब वो अपने घर में, वो अपने छोटे से घर में जहां वो रहता था, वहां पहुंचा, he stood still with amazement. उसे बहुत हैरानी हुई. वो हैरानी से वहां पर खड़ा हो गया, स्टिल पर्सन की तरह, मतलब विदाउट मूवमेंट,
For in place of his wooden hut stood a stately palace filled with splendid furniture. वो क्यों हैरान हो गया? क्योंकि जहां पर उसका छोटा सा घर था, वुडन हट थी लकड़ की बनी हुई, वहां पर क्या था उसकी जगह? स्टेटली, आलीशान, वहां पर महल बन गया था। पैलेस मीन्स महल। फिल्ड विद स्प्लेंडेड फर्नीचर, जहां पर शानदार फर्नीचर भी था। एंड मोस्ट स्प्लेंडेड ऑफ ऑल वाज द बेड, और सबसे ज्यादा शानदार क्या चीज थी? वहां पर रखा हुआ बेड। इन एवरी रिस्पेक्ट लाइक द वन ही हैड एनवीड, हर तरह की चीज अब उसे मिल गई थी जिस चीज की उसने इच्छा की थी। He was beside himself with joy and his old life was soon forgotten. वो बहुत खुश हो गया ये सब चीजें देख के, और जल्दी ही अपनी पुरानी लाइफ को forgotten means भूल गया। It was now the beginning of summer and each day the sun blazed more fiercely. It was now the beginning of summer. अब समर सीजन शुरू हो गया था। And each day the sun blazed more fiercely. और रोज जो सन था वो बहुत ज्यादा तेजी से चमकता था। One morning the heat was so great that the stone cutter could scarcely breathe. एक सुबह हीट इतनी ज्यादा थी, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जो स्टोन कटर है वो ब्रीद ही नहीं कर पा रहा था। स्केर्सली ब्रीद मतलब बहुत कम, जिसे मतलब बहुत कम सांस ले पा रहा था, उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। And he determined he would stay indoor till the sun set. और उसने determined means decide, और उसने क्या डिसाइड किया कि जब तक सनसेट नहीं हो जाता वो घर के अंदर ही रहेगा। He was rather dull for he had never learned how to amuse himself. वो अब डल हो गया था, किस लिए? क्योंकि उसे इन सब चीजों के साथ मतलब अंदर रह के उसे अपने आप को एंजॉय करने की, जो भी घर में रखी चीजें हैं उनके साथ एंजॉय करने की उसे आदत नहीं थी, तो वो बहुत बोर हो रहा था अंदर बैठा हुआ। And was peeping through the closed blinds to see what was going on in the street. और peeping out मतलब उस बाहर देखना, झांक कर देखना। तो वो उसने क्या किया? अपने विंडो से बाहर की तरफ झांक कर देखा कि स्ट्रीट में, गली में कौन आ जा रहा है। तो when a little carriage passed by, जब वो देख रहा था तो उसने क्या देखा कि एक लिटिल कैरेज, छोटा सा रथ जो है वो उसकी गली में से गुजर रहा था। ड्रॉन बाय सर्वेंट्स ड्रेस्ड इन ब्लू एंड सिल्वर, जिसे सर्वेंट्स पुल कर रहे थे, और उन सर्वेंट्स ने कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी? ब्लू और सिल्वर कलर की। इन द कैरेज सेट अ प्रिंस विद अ गोल्डन अम्ब्रेला हेड ओवर हिज हेड, और इस कैरेज में, उस रथ में कौन बैठा हुआ था? एक प्रिंस, राजकुमार बैठा हुआ था, जिसके हेड को किसने कवर किया हुआ था? एक गोल्डन अम्ब्रेला ने, ताकि उसको सन की हीट उस पर ना पड़े। टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द सन रेज। ओह, इफ आई वर ओनली अ प्रिंस, सेड द वुड कटर टू हिमसेल्फ। As the carriage vanished around the corner, जब तक कि वो कैरेज जो रथ है वो कॉर्नर तक जाता, वहां मतलब उस गली को क्रॉस कर जाता, तब स्टोन कटर ने अपने मन में क्या सोचा? काश कि मैं एक राजकुमार होता, मैं एक प्रिंस होता। Oh, if I were only a prince and could go in such a carriage and have a golden umbrella. वो क्या सोच रहा है कि मैं भी अगर एक राजकुमार होता तो मेरे पास भी एक ऐसा कैरेज होता, रथ होता, और मेरे पास भी एक गोल्डन अम्ब्रेला होता हेड ओवर मी, मेरे ऊपर। हाउ हैप्पी आई शुड, तो मैं कितना खुश होता। एंड अ प्रिंस ही वॉज, और क्या हुआ? उसने ये सोचा और उसकी ये इच्छा पूरी हो गई। Before his carriage rode one company of men and another behind it. अब उसके कैरेज, उसके रथ के आगे भी कंपनी मीन्स कुछ लोग थे, और उसके पीछे भी
कुछ लोग थे, यू कैन सी इन द पिक्चर, कैरेज पे नजर आ रहा है वो बैठा हुआ, और कुछ लोग आगे, कंपनी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, उसके आगे भी कुछ लोग थे और उसके पीछे भी। सर्वेंट्स ड्रेस्ड इन स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स रेड कलर को बोलते हैं। सर्वेंट्स ड्रेस्ड इन स्कारलेट एंड गोल्ड बोर हिम अलोंग, जो वो सर्वेंट्स थे उन्होंने किस कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, रेड कलर की, और गोल्डन उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी, कैरी की हुई थी। द कोवेटेड अम्ब्रेला हेल्ड ओवर हिज हेड, और जो उसने स्ट्रांगली डिजायर्ड किया था कि मेरे भी सिर के ऊपर एक गोल्डन अम्ब्रेला होगा, तो अब उसके भी सिर पर एक गोल्डन अम्ब्रेला है। He had everything, he had everything his heart desired, अब उसके पास वो सब कुछ है जो उसके दिल ने इच्छा की थी। Yet it was not enough, अभी भी उसके लिए काफी नहीं था। He still looked around for something to wish for, अभी भी वो अपने चारों तरफ देख रहा था कि और उसे क्या चाहिए। And when he saw that, in spite of the water he poured on the grass, the rays of the sun scorched it. उसने क्या देखा, जबकि आसपास जो ग्रास था उन पे पानी दिया जा रहा था, फिर भी सन की हीट से वो बर्न हो रहा था ग्रास। And that in spite of umbrella had over his head, each day his face grew browner and browner. In spite of the umbrella, जबकि उसके हेड के ऊपर वो अम्ब्रेला था, each day his face grew browner and browner, फिर भी सन की हीट की वजह से उसका जो फेस है वो और ब्राउन होता जा रहा था, डल पड़ता जा रहा था। He cried in anger, वो गुस्से में चिल्लाया, The sun is mightier than I, जो सन है वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। Oh, if I were only the sun, काश मैं सन बन जाऊं, क्या मैं, काश मैं सन होता, सूरज होता। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, फिर से वो माउंटेन में रहने वाली स्पिरिट जो आत्मा है उसने क्या आंसर दिया, योर विश इज हार्ड, तुम्हारी जो इच्छा है वो सुन ली गई है। द सन यू शेल बी, अब तुम एक सन बन जाओगे, सूरज बन जाओगे। एंड द सन ही वॉज, और वो एक सूरज बन गया। एंड फेल्ट हिमसेल्फ प्राउड इन हिज ग्लोरी, और अपने आप में वो बहुत प्राउड फील करने लगा, उसे बहुत गर्व होने लगा कि अब वो बहुत शक्तिशाली बन गया है। He shot his beams above and below, on earth and in heaven. Beams means rays, सन की रेज होती है ना, अब वो अपनी रेज को कहाँ डालने लगा, अर्थ के ऊपर, हेवन में, हर जगह अपनी वो रेज बिखराने लगा। He burnt up the grass in the field, उसने फील्ड में, खेतों में ग्रास जो है उसे भी अपनी हीट से जला दिया। एंड स्कॉच्ड द फेसेस ऑफ प्रिंसेस, और राजकुमारियों का भी फेस जो है उसने बर्न करना, मतलब उसे टैनिंग करना शुरू कर दिया। एज वेल एज अर्थ, एज वेल एज ऑफ पुअर फोक, और किसका फेस, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें भी, मतलब सबको उसने अब नुकसान पहुंचाना, राजकुमार को, ग्रास को, अर्थ पे रहने वाले गरीब लोगों को, सबको उसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। बट इन अ शॉर्ट टाइम, जल्दी ही बिगेन टू ग्रो टायर्ड ऑफ हिज माइट, अपनी वो इस माइट से, अपनी इस पावर से वो टायर्ड हो गया, थक गया। फॉर देयर सीम्ड नथिंग लेफ्ट फॉर हिम टू डू, अब उसके बाद करने को कुछ भी नहीं रह गया था। अपनी हीट से उसने इतना नुकसान पहुंचा दिया, अपनी पावर उसने शो कर दी, अब उसके पास करने को और कुछ भी नहीं रह गया था। डिसकंटेंट वंस मोर फिल्ड हिज सोल, दोबारा से उसकी जो सोल है, उसकी अंतरात्मा जो है, जो दोबारा से वो डिससेटिस्फेक्शन से भर गई, अब वो फिर से सेटिस्फाइड नहीं था अपनी पावर से। एंड व्हेन अ क्लाउड कवर्ड हिज फेस, फिर जब उसके फेस को क्लाउड, बादल ने कवर किया, एंड हिड द अर्थ फ्रॉम हिम, ही क्राइड इन हिज एंगर, और अर्थ को उससे बचा लिया, तो उसे फिर से गुस्सा आ गया। अब सन, अगर बादल आ जाते हैं सन के आगे तो सन की हीट अर्थ तक नहीं पड़ती, तो अब उसे गुस्सा आ गया कि मैं सन हूँ, इतना पावरफुल हूँ, लेकिन ये क्लाउड मेरे रास्ते में आ गया तो मैं अर्थ तक अपनी हीट को नहीं पहुंचा पा रहा हूँ।
Does the cloud hold captive my rays? क्या क्लाउड्स ने मेरी रेस को जकड़ लिया है, बंदी बना लिया है? एंड इज इट माइटियर देन आई? क्या वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है? ओह आई विश दैट आई वाज अ क्लाउड। अब वो क्या विश कर रहा है कि काश मैं क्लाउड बन जाऊं, बादल बन जाऊं, एंड माइटियर देन एनी, और सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर, और फिर से माउंटेन स्पिरिट ने उसे आंसर किया, योर विश इज हार्ड, अ क्लाउड यू शैल बी। तुम्हारी विश सुन ली गई है और अब तुम एक क्लाउड बन जाओगे। एंड अ क्लाउड ही वॉज, अब वो एक क्लाउड बन गया, बादल बन गया। एंड ले बिटवीन द सन एंड द अर्थ, और अब वो कहाँ लाई कर रहा है? सन कहाँ, क्लाउड कहाँ लाई करते हैं? सन और अर्थ के बीच में। He caught the sun's beams and held them. अब उसने सन की रेस को पकड़ लिया, and to his joy the earth grew green again. और अब दोबारा जो अर्थ है वो ग्रीन होने लगी, हरी भरी होने लगी। And flowers blossomed, और फूल खिलने लगे। But that was not enough for him. पर ये भी उसके लिए काफी नहीं था। And for days and weeks he poured forth rain till the rivers overflowed their banks. अब वो बहुत ज्यादा बारिश करने लगा, क्लाउड जो है। तब तक वो बारिश करता रहा जब तक कि रिवर्स अपने किनारों से ओवरफ्लो नहीं हो गई। एंड द क्रॉप्स ऑफ राइस स्टूड इन वाटर, और मींस फसलें खराब नहीं होनी शुरू हो गई, तब तक वो बारिश करता रहा। टाउन्स एंड विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड बाय द पावर ऑफ द रेन। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो भी तो सारे गांव और शहर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। तो वो ये सब कुछ करने लगा। ओनली द ग्रेट रॉक ऑन द माउंटेन साइड रिमेन्ड अनरिमूव्ड, लेकिन जो बहुत बड़ी चट्टान थी, माउंटेन रॉक थी, वो अनमूव्ड थी, उसे नहीं हिला पाया। द क्लाउड वॉज अमेज्ड एट द साइट, क्लाउड ने जब देखा कि मैं इसे हिला क्यों नहीं पा रहा हूं, एंड क्राइड इन वंडर, फिर से उसे गुस्सा आया, इज द रॉक देन माइटियर देन आई? क्या ये रॉक मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है? ओ इफ आई वर ओनली द रॉक, ओह मैं एक रॉक होता, चट्टान होता जिसे कोई भी हिला नहीं सकता था। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर्ड, फिर से माउंटेन स्पिरिट ने आंसर किया, योर विश इज हार्ड, तुम्हारी विश सुन ली गई है, द रॉक यू शैल बी, अब तुम एक रॉक बन जाओगे। एंड अ रॉक ही वॉज, तब वो एक रॉक बन गया। टू एंड ग्लोरिफाइड इन हिज पावर, और अब वो फिर से अपनी पावर पे बहुत गर्व करने लगा, बहुत खुश हो गया कि मुझे मैं इतना पावरफुल बन गया हूँ। प्राउडली ही स्टूड, अपने प्राउड में, गर्व से वो सीधा खड़ा रहा, चट्टान सीधी खड़ी रहती है ना। एंड नीदर द हीट ऑफ द सन नॉर द फोर्स ऑफ द रेन कुड मूव हिम, अब ना तो सन की हीट उसे कोई नुकसान पहुंचा पा रही थी, उसे हिला पा रही थी, और ना ही रेन। दिस इज बेटर देन ऑल, अब वो क्या सोच रहा है अपने आप में कि मैं सबसे अब बेटर हूँ। जितने भी मैंने चेंजेस लाए हैं अपने में, वो पहले सन बना, प्रिंस बना, क्लाउड बना, लेकिन अब वो माउंटेन रॉक बन के बहुत खुश है। He said, but one day he heard a strange noise at his feet. पर अचानक से एक दिन उसने अपने फीट, मतलब रॉक के सरफेस पे उसने ना कुछ आवाज सुनाई उसे। एंड व्हेन ही लुक डाउन, जब उसने नीचे देखा, टू सी व्हाट इट कुड बी, कि ये क्या हो सकता है, he saw a stone cutter driving tools into his surface. उसने क्या देखा कि एक स्टोन कटर अपने टूल्स, अपने औजार से उसे नीचे से कुरेद रहा है, उस पे पत्थर से उस पे हिट कर रहा है अपने औजार से। Even as he looked, he could feel himself tremble. जब वो देख रहा था तो वो कांपने लगा, क्योंकि उस पे वो अपने औजार से स्टोन कटर जो है वो हिट कर रहा है। यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर में, स्टोन कटर जो है अपने उसने टूल्स लिए हुए हैं और वो रॉक को कट कर रहा है। तो वो ट्रेम्बल, कांपने लगा।
and soon a great block broke off. और जल्दी ही एक then he cried, if I were only a man,